دیکھیں صاحب، اگر اپوزیشن میں یا بی آر ایس میں یا اس وقت طاقت پر جو نا اپوزیشن بی آر ایس ہے، اگر بی آر ایس کی طرف سے مسلم امیدوار کو کھڑا بھی کیا جاتا ہے تو اس امیدوار کے کامیاب ہونے پر مسلمانوں کا کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ وہ اپوزیشن میں وہ یہ بتائیں گے کہ ہم کیا کریں گے۔ اب جوبلی ہلز کے اہم مسائل میں جو سامنے آئے ہیں وہ یہ ہے کہ وہاں پر ایک قبرستان کا مسئلہ ہے، وہاں کی جو نا ترقی کا مسئلہ ہے۔ تو اب جو نا اپوزیشن کا امیدوار اگر مسلمان بھی کامیاب ہو جائے گا وہ تو جو ہے نا لکیر کا فقیر رہے گا۔ تو اس لیے ہم یہ جو ہے نا ہم یہ پرزور مطالبہ کر رہے ہیں کہ رولنگ پارٹی سے کانگریس پارٹی سے دیا جائے۔ خیرالدین صاحب نہیں، ہم کسی مسلم امیدوار کی نشاندہی نہیں کریں گے، بالکل نہیں کریں گے۔ کانگریس کا اندرونی اپنا مسئلہ ہے، آپ کسی راستہ چلنے والے کو بھی کانگریس کا ٹکٹ دے کے کھڑا کریے۔ ہم اظہر الدین صاحب سے بھی یہ مطالبہ کیے کہ آپ یہ پیشکش کو ٹھکرا دیجئے، کیونکہ وہ جو کوٹے سے دیا گیا ہے وہ ان کے شایان نشان نہیں ہے وہ، اور یہ صرف 3-4 میں وعدے کر رہا ہوں، میڈیا کے سامنے کہہ رہا ہوں میں، یہ 3 سے 4 مہینے تک ہے ان کی سیٹ، اس کے بعد میں کدھر سے بھی جو نا کورٹ میں کیس پڑیں گا۔ جس طریقے سے عامر علی خان صاحب کو بٹھا دیا گیا ان کو بھی بٹھا دیا جائے گا۔ یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے، یہ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اور ہم یہ اظہر الدین صاحب سے ہم یہ خواہش کر رہے ہیں کہ آپ جو ہے نا اس پیشکش کو ٹھکرائیے۔ آپ سیدھا ہم تو جو نا واضح کر دیے کہ اگر کانگریس اگر مسلم امیدوار کو ٹکٹ نہیں دیتی ہے تو آئندہ کانگریس مسلمانوں کے ووٹوں کو بھول لینا، ہم وہ تحریک چلائیں گے، خود جوبلی ہلز میں بھی چلائیں گے اور لوکل باڈیز الیکشن میں بھی چلائیں گے، کارپوریٹ الیکشن میں بھی ہم یہ تحریک چلائیں گے۔ اگر کانگریس اس حلقے سے ہم کو نظر انداز کرتی ہے تو وہ آگے مسلمانوں کے ووٹوں کو بھول جانا۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلم یونائٹڈ فیڈریشن کی جانب سے آج میڈیا پلس میں ایک کل جماعتی اجلاس رکھا گیا، اور الحمدللہ اس اجلاس میں مذہبی، دینی، ملی، سماجی تنظیموں کے ذمہ داروں نے شرکت فرمائی، اور بالاتفاق آراء سب کا یہی نظریہ تھا کہ آج جس مقصد سے یہ اجلاس رکھا گیا ہے اس کا اہم مقصد یہی ہے کہ گزشتہ اسمبلی انتخابات میں کانگریس کی جانب سے اسمبلی میں کوئی مسلم جو ہے نا چہرہ نہیں ہے، کوئی بھی ایک امیدوار کامیاب نہیں ہو سکا۔ اب کیوں نہیں ہو سکا وہ بات علیحدہ ہے کہ کچھ حلقوں میں ایسے حلقوں میں ٹکٹ دیے گئے وہاں پر جو نا مسلم امیدوار کامیاب ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور جہاں پر ہو سکتے تھے وہاں پر سازش بھی کی گئی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اب اس کے بعد ستم ظریفی یہ ہے کہ ہمارے چیف منسٹر صاحب نے یہ کہا ہے کہ میں مسلمانوں سے ناراض ہوں کیونکہ مسلمانوں نے ایک بھی مسلم امیدوار کو کامیاب نہیں بنایا، یعنی خود شکار خود جو ہے نا جال میں پھنس چکا ہے کہ وہ جو نا اپنا پلہ جھاڑ لینے کی کوشش کیے تھے، لیکن اللہ نے حالات کو ایسے لایا کہ جوبلی ہلز میں پھر جو ہے نا ضمنی الیکشن ہو رہا ہے، تو اب ہم ریونت ریڈی صاحب کے اس جملے کو پکڑتے ہوئے ہم عوام کے سامنے ہم یہ حقیقت لانا چاہتے ہیں، اور یہی ہمارا مقصد ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ مسلمان کامیاب نہیں کیے، اب جوبلی ہلز میں ریونت ریڈی سرکار مسلم امیدوار کو ٹکٹ دے، ہم جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر زمینی سطح پر ہم کام کریں گے، ہم زمینی سطح پر کام کریں گے، اور وہاں سے کانگریس کے مسلم امیدوار کو ہم کامیاب کروائیں گے، اور وہاں سے مسلم امیدوار کا کامیاب ہونا اس لیے بھی یقینی ہے کہ وہاں پر جملہ 3,90,000 ووٹ ہے، اور گزشتہ اسمبلی انتخابات میں 49% پولنگ ہوئی تھی، جس میں جو ہے نا 54% مسلم ووٹ گرے وہاں پر۔ تو اگر ہم یہ کیلکولیشن کیا جائے اور یہ دیکھا جائے تو وہاں سے مسلم امیدوار کی کامیابی یقینی ہے، اور 1,30,000 وہاں پر مسلم ووٹر ہے، تو یہاں سے مسلمان کو نظر انداز کر دینا تو یہ بات صاف ظاہر ہو جاتی ہے کہ ریونت ریڈی سرکار کسی مسلمان کو اسمبلی میں دیکھنا نہیں چاہتی اگر یہاں پر ٹکٹ نہیں دیتی ہے۔ اور اگر
रेवंत रेड्डी सरकार अपने इस मौक़ूफ़ पर अटल रही तो अब मुसलमान जिस तरीके से असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस को बरसर इख्तिदार लाए हैं, अब आने वाले जो मजालिस मुकामी के लोकल बॉडीज के जो इलेक्शन है, कारपोरेटर इलेक्शन है, तो अब हम ये यहाँ पर ऐलान करते हैं कि जब आपको किसी मुस्लिम उम्मीदवार को आप असेंबली में देखना नहीं चाहते तो फिर हम मुसलमान कांग्रेस को वोट क्यों दें? हम कांग्रेस को वोट क्यों दें? हम आइंदा के आने वाले इंतखाबात में हम मुसलमानों के वोट हम किसी को भी देंगे, लेकिन कांग्रेस को नहीं देंगे। हम ये डिक्लेयर करना चाहते हैं। जब आपको हम पसंद नहीं है तो फिर हम आपको क्यों पसंद करें? क्यों पसंद करें? अब इसका जो है ना खतई फैसला जो भी इसके इलेक्शन में हो जाएगा। अब रेवंत रेड्डी सरकार को ये देखना है कि जो मुसलमानों के ताल्लुक से जो मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं, हाँ, क्या उसको जो ना उसमें आपकी हमदर्दी में कोई सच्चाई भी है? वो सच्चाई जो ना यहाँ पर सामने आने वाली है। ये पूरा इजलास ये मुतालबा करता है कि हल्के असेंबली जोबली हिल्स में कांग्रेस के किसी भी उम्मीदवार को ठहराइए। हम किसी एक उम्मीदवार की तायद के लिए नहीं बैठे हैं यहाँ। किसी को भी आप टिकट दीजिए, लेकिन मुस्लिम उम्मीदवार होना चाहिए। ये इजलास का ये फैसला है और आज हमने यहाँ पर जो ना ये करारदाद भी जो है ना पास की है, मंजूर की है और ये हम जो ना हुकूमत को भी जो ना ये भेजेंगे। और अब हम जो ना यहाँ पर ये भी जो ना तय किए हैं कि हम हुकूमत के जो है ना जीएस नुमाइंदों से भी और खुद हम सीएम से भी मुलाकात करने के लिए भी हम जो ना मुलाकात करेंगे और उनके सामने भी जो है ना ये बात रखेंगे। आज का ये हमारा अहम जो है ना मसला है। हम अजहरुद्दीन साहब से भी ये मुतालबा किए हैं कि आप ये पेशकश को ठुकरा दीजिए, क्योंकि वो जो कोठे से दिया गया है वो उनके शाया निशान नहीं है वो। और ये सिर्फ 3-4 महीने वादे करो, मीडिया के सामने कह रहा हूँ मैं, ये 3 से 4 महीने तक है इनकी सीट। उसके बाद में किधर से भी जो ना कोर्ट में केस पड़ेगा। जिस तरीके से आमिर अली खान साहब को बिठा दिया गया, इनको भी बिठा दिया जाएगा। ये एक सोची समझी साजिश है ये। हम इसकी मजम्मत करते हैं और हम ये अजहरुद्दीन साहब से हम ये ख्वाहिश कर रहे हैं कि आप जो है ना इस पेशकश को ठुकराइए। आप अपने मौक़ूफ़ पे रहिए। या आप जो है ना जुबली हिल्स का हल्का आप कम वोटों से हारे थे, अगर आप ये कबूल कर लेंगे तो जो इमेज है उनकी वो भी खत्म हो जाएगी। तो साहब अपनी क्यों तेलंगाना में ताकत नहीं बनी? महाराष्ट्र में एक मराठा समाज का एक भाई बोलते तो महाराष्ट्र की हुकूमत की नाक में दम रखे, क्या तेलंगाना के मुसलमानों में वो ताकत नहीं है? क्या इलेक्शन आया खुद में बोलते खाली बयानबाजी करना, खुश करना, हुकूमत की तायद करना, आप क्या समझते हैं? नहीं, देखिए, आपका एक सवाल का एक हिस्सा बिल्कुल वाजिबी है, दूसरा हिस्सा गलत है। आपने इलेक्शन के टाइम पे जो ना बयानबाजी करने की जो बात कही है, ये इल्जाम है। ये यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं बरस के 12 महीने जमीनी सतह पर काम करने वाले, जमीनी सतह पर अमली तौर पर हम जेलों से नहीं डरे, केसों से नहीं डरे। हम पर जो ना कई लोगों के ऊपर केस भी, खुद मेरे ऊपर भी केसा है, लेकिन हम डरे नहीं। ना किसी पार्टी से नहीं डरे, हुकूमत से नहीं डरे, होम मिनिस्टर से नहीं डरे। अब सवाल ये है, दूसरा आपका सवाल का पहला हिस्सा ये है कि कोई जो ना मुस्लिम लीडर ऐसा क्यों नहीं उभरता। तो अब यहाँ पर जो ना अहम बात ये है कि कोई ऐसा आदमी यहाँ पर आगे अगर कोई बनना चाहता तो उसके लिए रुकावटें खड़ा कर दी जाती है। जनाब सूफी साहब, एक सवाल है आपसे। जी साहब। जो हमारे वोट है अब ऑलरेडी मुत्तहद है, क्योंकि गुज़िश्ता इलेक्शन में 49% कुल पोलिंग हुई थी और जिसमें से 54% मुस्लिम वोट गिरी। तो अगर हमारे जो ना 60% भी मुस्लिम वोट जो ना अगर डाल दिए हैं तो हमारा उम्मीदवार कामयाब हो सकता है। खवीम का नहीं भाई, कामयाब यकीनी है, कामयाब हो सकता है। और हम ये कह रहे हैं कि जितने यहाँ बैठे हुए हैं और जहाँ तक हमारा मैसेज जा रहा है, ये हमारे विखार की जो ना सीट हो गई है, हम इसको छोड़ने वाले नहीं है। हम छोड़ने वाले नहीं है, हम पूरे जमीनी सतह पर काम करेंगे जाकर। बस हमारे अफजल भाई आज के टाइम में जो है ना कोई मुसलमानों का हैबर सही है, ना कोई जो है भाई। अब इसके जिम्मेदार आप भी है, मैं भी हूँ। आप अपने आप को झाड़ लेके मत बैठो। आप भी जो है ना इसके जिम्मेदार हैं। आप लोग भी जो है ना बस एक को ऐसा चढ़ा देते, हकीकत बात बयान नहीं करते था। खुल के डालो मीडिया में, फिर उसके बाद में सवाल हमसे करो, आप जवाब देते उसका। जुबली हिल्स का इलेक्शन की बात हो रही, लेकिन जुबली हिल्स की आवाम बोलते थे कब्रिस्तान को लेकर जुम्मे को जुम्मा बोलते लगातार एहतजाज कर रहे। नहीं, कोई यहाँ से लोग जाकर उनकी तायद क्यों नहीं? साहब, अब हम ठोस बुनियादी सतह पर तायद कर रहे हैं ना।
अब हम यहाँ बैठे किस लिए, सब जमा हुए किस लिए? जुबली हिल्स के अवाम के वास्ते बैठे ना, हमारा हल्का तो नहीं है। लेकिन वहाँ के जो मसाइल है, कब्रिस्तान का जो मसला है, अहम मसला है। और अगर हम ये हमारा वहाँ से कांग्रेस एमएलए को टिकट देती है तो फिर देखिए हम वहाँ पर किस तरीके से काम करवाते हैं, काम करते हैं वहाँ पर। ऐसा नहीं है खाली हम जो ना मीडिया में बोल के पीछे हटने वाले नहीं, आप लोग जानते हैं हम लोग जमीनी से ताकत बना सकते हैं ना, फिर बिल्कुल वहाँ जाने पर भूंगा। अरे बनाएंगे साहब, हम वहाँ पर भी ताकत बनाएंगे ना। अब ये पहला मरहला है, ये आखिरी नहीं है। ये बोलिए भाई, इसका हनीमून सामने आ जाएगा, सीधी सीधी बात है। हाँ, वो हो रहा साहब, हम भी वाकिफ है उससे। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि इधर आप जो है ना सियासी आप हनीमून भी जो है ना करेंगे और उसके बाद मुसलमानों को बोलेंगे कि तुम लोगों ने जीता है, तो उसका जवाब दे रहे हैं हम यहाँ। फेडरेशन से कोई उम्मीदवार खड़ा सकता है? नहीं साहब, नहीं ठहरेंगे हम, बिल्कुल नहीं ठहरेंगे। हाँ, नहीं ठहरेंगे हम सिर्फ रूलिंग पार्टी से डिमांड कर रहे हैं, रूलिंग पार्टी टिकट देना। क्योंकि रेवंत रेड्डी के अल्फाज है, गले में फंदा खुद डाल लिए, अब हम पकड़ के खींच रहे, खुद डाल लिया उन्होंने कि मैं नाराज हूँ मुसलमानों से। अब खुश हो जाओ भाई, हम काम करते, खुश हो जाओ, हम जिता के बताते, उसके बाद में मिनिस्ट्री के वास्ते भी गला पकड़ते हम तुम्हारा, वो जिताने के बाद मिनिस्ट्री जो बोल के भी गला पकड़ते। मिनिस्टर कांग्रेस में से महमूद अली के साथ मिला तो जब क्या करेंगे? महमूद अली साहब को जो ना क्या बख्श दिए क्या आप लोग? हम बख्श दिए क्या? नहीं बख्शे, इनको भी नहीं बख्शते। अगर उन्होंने बैठे बाद में मुसलमानों को छोड़ देंगे तो फिर उनके ताल्लुक से भी जो ना बात करना आता हमारे को। आप लोग वाकिफ है हमारे से। फिर अब ऐसे सवाल आप पूछो, काम के बचपन के सवाल कहीं पूछ रहे। अल रहमानिया टूर्स एंड ट्रैवल्स हज, उम्रा और ज़ियारतों की खिदमत हासिल करें बहुत ही कम रकम में। हमारे यहाँ से जाने वाले तमाम आज़मीन को मुफ्त में एहराम और 2 बैग दिए जाते हैं। मक्का और मदीना में उम्रा और तमाम ज़ियारतों की आसानी के लिए मौलवी का एहतमाम, इंडियन और हैदराबादी फुट लॉन्ड्री की सहूलतें। इसके अलावा हमारे यहाँ एयर टिकटिंग, डोमेस्टिक इंटरनेशनल टूर पैकेजेस, डोमेस्टिक इंटरनेशनल इमिग्रेशन सर्विसेज, विजिट वीजाज, पासपोर्ट सर्विसेज, सर्टिफिकेट अटेस्टेशन, ऑनलाइन सर्विसेज, अकाउंट एंड बैंकिंग सर्विसेज, डॉक्यूमेंटेशन और दीगर तमाम सर्विसेज हासिल करने के लिए चले आइए अल रहमानिया टूर्स एंड ट्रैवल्स हज व उम्रा, हसन नगर एक्स रोड, डॉक्टर मनमोहन सिंह फ्लाईओवर अपोजिट पिलर नंबर 55। कॉन्टैक्ट 9666861414 और 7997866029। ईमेल एड्रेस भी सेव कर लें। याद रखिए, अल रहमानिया टूर्स एंड ट्रैवल्स हज व उम्रा और तमाम ज़ियारतें।